So let's do an introduction to STR, what STR is, what is relativity, and how did these ideas come into the picture. So the idea of relativity basically has to do with a set of transformations that you make from one frame of reference onto other. So for example, जब भी आपके पास बेटा जिसका भी ऑडियो ऑन है वो आप अभी म्यूट कर दो फॉर द टाइम बिंग. So if you have a coordinate system, let's suppose x, y, z, and associated with one particular observer, and another coordinate system, let's suppose x bar, y bar, z bar, associated with another observer. So let's suppose there are two observers uh, that are in two different frames of reference. All right. So normal situations where you can think of this whole idea as being, let's suppose this is a person who is at rest, okay, as an example, and this is a person who is, let's suppose, moving like in a car or a metro or something like that. All right, in a normal situation. Uh, so the main question is, how do we look at the equations associated with the physical laws between both these two observers? All right. So usually जब भी हम mechanics study करते हैं, for example, when you study mechanics, there is a set of transformation equations associated with mechanics when you make a transition from one observer to another observer. So if I specify the first observer with a coordinate system x, y, z and time t, let's suppose, so this is an S frame of reference, and if I associate another coordinate system x bar, y bar, z bar with, let's suppose, an S bar frame of reference, then these coordinates are related by the relationship known as Galilean transformations. Okay, or I can write this as GT. So the Galilean transformations are quite simple. आप लोगों ने शायद इसको पढ़ा भी होगा. X bar is equal to X minus VT, Y bar is equal to Y, Z bar is equal to Z, and T bar is equal to T. Okay, so these are known as the Galilean transformation. They give you a relationship between the coordinates of one frame of reference with respect to the coordinates of another frame of reference. So for example, अगर आप रेस्ट पे है और आपका कोई फ्रेंड किसी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कोई मेट्रो में ट्रेवल कर रहा है, and you're studying the same event. So let's suppose you're studying the event like there is some trajectory or some kind of a ball which is moving, या फिर the motion of the moon या कुछ भी हो, and you're studying the same event, then you can connect the coordinates of yours with respect to that event and the coordinates of the other person by the Galilean transformations. So once you have the Galilean transformation, फिर यहाँ से आप जो है velocity से related भी transformation obtain कर सकते हो, ठीक है, वहां से आप acceleration से related भी transformation obtain कर सकते हो, and on and on. Now, why are the Galilean transformations important? The Galilean transformations are important because इससे क्या है, आपके पास कोई भी equation है motion से related, you can transform from one set of one coordinate system to another coordinate system. Now, there is one very important fact, yeah, important principle associated with this kind of a transformation, which is known as the principle of relativity. Now, principle of relativity है क्या? Principle of relativity was originally given by Galileo, and he simply said that the physical laws, मतलब जो भी है laws which are involved, the physical laws are invariant with respect to the frames of reference. So physical laws are invariant. Invariant का मतलब है they are same with respect to the frames of reference. So irrespective of the frame of reference, the physical laws are the same. या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो that the equations describing the laws of physics have the same form across
all inertial frames. नाउ इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? इस स्टेटमेंट का मीनिंग बहुत ही सिंपल है, दैट अगर आपके पास कोई भी लॉ है, दैट यू वांट फिजिकल लॉ है, दैट यू वांट कि वो जो फिजिकल लॉ है, इट इज नॉट स्पेसिफिक टू वन ऑब्जर्वर. जो भी फिजिकल लॉ है, इट मस्ट बी अक्रॉस ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस. मतलब यू कैन हैव इनफाइनाइट इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इन आवर यूनिवर्स. मतलब आप रेस्ट पे, आपके रेस्पेक्ट पे कोई किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी में मूव कर रहा है, कोई और किसी और पर्टिकुलर वेलोसिटी में मूव कर रहा है. देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस. और जो भी लॉ है, व्हिचएवर स्टेटमेंट गिव्स अस अ लॉ अबाउट द नेचर ऑफ हाउ सिस्टम्स इवॉल्व, वो चीज जो है फ्रेम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल, अगर हम लेट्स सपोज लॉज ऑफ मैकेनिक्स को देखते हैं, सो इफ यू लुक एट द लॉज ऑफ मैकेनिक्स, so what is the law of mechanics? So if you look at two frames, again S and S bar, X bar, Y bar, Z bar, and X, Y, Z. So the fundamental law of mechanics is nothing but F is equal to ma, right? F is equal to ma. So अगर पहले frame of reference में कोई एक observer है, then for him, if he is, let's suppose, studying some kind of a motion of a body, then for him he can conclude that this is the law associated with the nature of the motion. Now let's suppose there is another observer here. He is also studying the same phenomena, and he concludes the same thing, that the law itself, that the form of the law itself is exactly the same. Now ये बात अलग है कि दोनों फ्रेम्स में जो मास है वो इनवेरिएंट है, एक्सेलरेशन जो है वो इनवेरिएंट है, फोर्स जो है वो भी इनवेरिएंट होता है. बट यू कैन प्रूव इजिली दैट अंडर अ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, if you use a Galilean transformation, then under a Galilean transformation, you can automatically prove that if the Newton's second law is valid in one frame of reference, ये automatically दूसरे frame of reference में भी ये valid होगा. This is known as the principle of relativity. So this is known as the principle of relativity, which simply means that अगर आपके पास कोई भी law है, mechanical law है, then if it is true in one frame of reference, it should automatically be true in another frame of reference. Now, this is the principle of relativity, and it is true for Newton's second law. But the problem is, ये जो principle of relativity है, that came into question in the 19th century when Maxwell gave what is known as his Maxwell's equations. The same is not true for the Maxwell's equations or the laws of इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. तो इसका जो प्रूफ है वो मेरे नोट्स में है. इफ यू लुक एट, मैंने जो पीडीएफ शेयर किया था, पीडीएफ का जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज में ही मैंने इसको प्रूफ कर दिया है. द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ द पीडीएफ दैट आई शेयर्ड. तो पीडीएफ जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसके फर्स्ट पेज में इसका प्रूफ है. ठीक है. और द फर्स्ट जो 2-3 पेजेस है, उसमें मैंने ये स्टेटमेंट प्रूफ किया है. यू कैन लुक अप माय नोट्स that the same is not true for Maxwell's equations. So for example, if I write the Maxwell's equations, मैं अगर Maxwell's equations को लिखता हूँ, let's suppose in vacuum. So for example, the del dot E is equal to 0. ठीक है. Del cross E is equal to minus del B upon del T. ठीक है. And del dot B is equal to 0 vacuum में, and del cross B is equal to mu naught epsilon naught del E by del T, right? तो ये जो equations है, they determine all sorts of behavior of electric charges, electric fields, magnetic fields, electromagnetic oscillations. And let's suppose these set of equations जो है, these are true with respect to the S frame of reference. ठीक है. S frame के respect में ये equations true है. Now, अगर the principle of relativity was true for Maxwell's equation, तो S dash frame के respect में भी the nature of the equation should be the same. So for example, मैं अगर S dash frame of reference
एज डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर इक्वेशंस को लिखता हूं तो आई विल हैव टू राइट लेट्स सपोज डेल डैश, ओके। सो यहाँ पे मैंने एज बार यूज किया, बट यहाँ पे आई एम यूजिंग डेल डैश, ओके, जस्ट बिकॉज सो एज टू नॉट टू कंफ्यूज विद द वेक्टर सिंबल। सो डेल डैश डॉट ई डैश इज इक्वल टू 0, del dash cross e dash is equal to minus del b dash del t dash, ठीक है, and del dash dot b dash is equal to 0 and del dash dot b dash cross b dash is equal to mu naught epsilon naught del e dash upon del t dash. Now ये जो दोनों set of equations है, this is true for the S frame, ठीक है, and if principle of relativity holds true, then this should be true for S bar frame, all right, and I should automatically be able to prove that this follows from this or this follows from this under a set of Galilean transformations. So under Galilean transformations, I should be able to easily prove कि अगर मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ट्रू है, तो मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए भी वैलिड रहेगा. बट द प्रॉब्लम इज दैट इज एक्चुअली नॉट द केस. सो इफ यू लुक अप माय नोट्स, अगर आप मेरे नोट्स को देखोगे जो मैंने पीडीएफ शेयर किया था, द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पेज जो है, आई एम बेसिकली ट्राइंग टू शो कि दिस इज नॉट ट्रू. सो दिस डज नॉट हैपन. मतलब इफ यू एज्यूम कि मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड है, ठीक है, लेट्स सपोज दिस सेट इज वैलिड फॉर द एस फ्रेम, ऑलराइट, देन यू कैन नॉट प्रूव दैट एस बार फ्रेम के लिए दूसरा सेट ऑफ इक्वेशंस वैलिड रहेगा, ऑलराइट. या फिर अगर आप कहते हैं कि अगर मैक्सवेल्स इक्वेशंस आर ट्रू फॉर लेट्स सपोज द अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देन यू कैन नॉट प्रूव द रिवर्स, that the first set of equations are also going to be true for the other frame of reference. Now this poses a very big problem. This is a huge problem, you know. The problem is because the universal laws jo hai, by definition we want universal laws. Universal laws ka matlab ye hai that the laws should not distinguish between frames of reference. ऐसा नहीं है कि एक फ्रेम के लिए it is true but it is not true for any other frame of reference. And that would be a problem. Then that would not be a law. The very idea of a physical law is that it must be true for all frames of reference out there. ठीक है. So as you see, जो हमारे पास set of transformation equations है, Galilean transformation equations, using that I can easily show that Newton's laws of motion are equally consistent in inertial frames of reference, but the Maxwell's equations are not consistent across inertial frames of reference, and that is a huge problem. In fact, जो 19th century है, 19th century था, in that time scientists were puzzled by this very fact. Now what are the possibilities? इसमें problem क्या है? Why is it that using the same kind of a Galilean transformation मैं Maxwell's equations को एक सेट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता? So possibilities क्या है इसका? मतलब what is happening? So there are three possibilities. सबसे पहला possibility ये है कि either Maxwell's equations are wrong, ठीक है, मे बी हमने जो मैक्सवेल ने दिया था equations वो गलत है, there is something wrong with them, then they need to be changed. या फिर Galilean transformations are wrong. हो सकता है कि हमें जो पता है कि कोऑर्डिनेट्स को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो जो सेट ऑफ इक्वेशंस है वही गलत है. या फिर देयर इज अ थर्ड पॉसिबिलिटी दैट मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो है आर ट्रू फॉर वन पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हम कह सकते हैं एदर फ्रेम, ईथर फ्रेम, या फिर some kind of an absolute frame of reference, and they need to be transformed for other frames of reference. ठीक है.
So this was one of the likely options in the 90th century. People were thinking that maybe this is what is happening. If there is some kind of an absolute frame of reference, and in that absolute frame of reference, जो है Maxwell's equations are true, and then for other frames of reference you need to change the Maxwell's equation. और इसी चीज को प्रूव करने के लिए scientists performed what is known as the Michelson-Morley experiment. आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, राइट? सो Michelson-Morley experiment is itself a huge topic. मैं इसमें जाऊंगा नहीं क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में इसको पढ़ा हुआ है. What they try to do is they try to see कि जो अर्थ है, as Earth is going around in its orbit, then what is the velocity of light in the direction of motion of the Earth, and what is the velocity of light in a direction perpendicular to the motion of the Earth. ठीक है? That is what the Michelson-Morley tried to see, and they found out कि जो लाइट का स्पीड है, whether it is in the direction of motion of the Earth or whether perpendicular to the direction of motion of the Earth, is exactly the same. Thereby they were unable to prove that there is an absolute frame of reference. अगर एक absolute frame of reference होता तो क्या होता कि जो लाइट की वेलोसिटी है वो उस absolute frame के लिए ट्रू होता, ठीक है, बट जो अदर रिलेटिव फ्रेम्स है उसके लिए इट वुड नॉट बी ट्रू. सो अगर Michelson-Morley के बारे में आपको पढ़ना है तो फिर आप मेरे नोट्स देख सकते हो, उसमें मैंने दिया हुआ है. और जो मैंने YouTube वीडियोस आपके साथ शेयर किया है उसमें भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है Michelson-Morley एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, सो यू कैन स्टडी दैट. ऑलराइट, सो Michelson-Morley एक्सपेरिमेंट ट्राइड टू सी कि एक एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि नहीं, और अगर है तो क्या एब्सोल्यूट फ्रेम और रिलेटिव फ्रेम के बीच में जो लाइट की वेलोसिटी है वो चेंज होता है या नहीं. बट दे वर अनेबल टू प्रूव इट, सो इट वाज अ नल एक्सपेरिमेंट. So they were unable to prove that there is indeed some kind of a absolute frame of reference or an either frame of reference. So this option was again experimentally invalidated. आप कह सकते हैं कि ये जो option है it is not necessarily true. So now the question is, अगर ये गलत है तो which of these are correct? Is this correct or is this one correct? क्या Maxwell's equations गलत है या फिर Galilean transformations गलत है? So at this point in time, Einstein comes into the picture in 1905. Okay, Einstein comes and he says that the Maxwell's equations are correct, but the Galilean transformations are wrong. Okay, this is what Einstein states. Effectively, आप जो STR के postulates पढ़ते हो वो बहुत simple है. इतना simple है that it becomes kind of like confusing कि how can such profound ideas be behind such simple statements. Effectively जो statement Einstein ने दिया था that Maxwell's equations, sorry मैंने Maxwell's equations are wrong. So Maxwell's equations are in fact correct. Okay, it is the Galilean transformations which are wrong. So what Einstein said was he gave two very simple postulates. The first postulate is nothing but the postulate of relativity. जो principle of relativity का postulate है ना, that itself is given by Einstein. He repeated what Galileo said, that the principle of relativity so he said कि not only the Newton's laws but even the Maxwell's equations as well as any other law, चाहे वो mechanical law हो, चाहे वो statistical law हो, चाहे वो thermodynamical principle हो, चाहे वो electromagnetic principle हो, all the laws of physics are invariant with respect to frames of reference. All laws of physics are कह सकते हैं कि frame independent, मतलब वो किसी frame के ऊपर depend नहीं करता. ठीक है? And the second statement he gave is something which is very out of the ordinary, but using that we can come up with a new set of transformations. So since Galilean transformations are wrong, we need to find a new set of transformations. So he gave a statement called constancy of
the velocity of light. That speed of light is a constant in our universe. It's not possible to go beyond the speed of light. It is not possible for at least massive bodies to even reach the speed of light. So speed of light is a constant of our universe. Now, what is the consequence of these two statements? These two statements have huge consequences. First of all, the first consequence is that the Galilean transformations are wrong. And using these two statements, we need to now obtain a new set of transformation equations. So for example, let's go back to our original problem. हमारा original problem क्या था कि आपके पास दो observer है who are in some kind of inertial frame of reference x, y, z, x bar, y bar, z bar. ठीक है, हमारे पास दो ऑब्जर्वर है जो यूनिवर्स में किसी फिजिकल इवेंट को स्टडी कर रहा है. दिस इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ v. मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था, हाँ मेंशन किया था. दिस इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ v. In that case, for low velocities or the domain in which relativity is not important, non-relativistic, in that case you can show that the Galilean transformations are true. So x bar is equal to x minus vt, y bar is equal to y, z bar is equal to z, and t bar is equal to t. However, these are the Galilean transformations. But the moment you go to, let's suppose, the relativistic domain, ठीक है, relativistic domain मतलब whenever objects are moving या observers are moving near about the speed of light, considerably high velocities, in that case these set of equations are not true. You need a new set of equations जिसको मैंने proof किया है. So if you look up my video on Lorentz transformations, उसमें मैंने using the principle of relativity and constancy of velocity of light मैंने Lorentz transformations को derive किया है. So if you are interested in finding out the derivation of the Lorentz transformation, so you can look up my video on the Lorentz transformations. Alright, या फिर मेरे notes में भी है, notes में the derivation is there. Okay, so मैं derivation में जाऊंगा नहीं. I'm just going to state what these Lorentz transformations are. So x bar is equal to gamma x minus vt, y bar is equal to y, z bar is equal to z, and t bar is equal to gamma t minus v x upon c square, where gamma is nothing but 1 upon root over 1 minus v square upon c square. So आपका जो Galilean transformations है, they are valid for low velocities, but जो Lorentz transformations है, ठीक है, they are valid for high velocities as well as for general case. Okay, so this is a general case scenario. For any kind of a velocity, this is true. In fact, for a specific case, you can transform the Lorentz transformations to the Galilean transformations. All right, for low velocities, so velocity very, very less compared to the speed of light, you can transform the Lorentz transformations to a Galilean transformation. So these are a set of Lorentz transformations. Iska jo proof hai, that is up to you. Okay, you look up my notes, look up my video, and this is a set of transformations that you go from S frame of reference to S bar. Okay, you can also go from S bar to S. So the reverse transformations are so the reverse transformations are simply given by x is equal to gamma x bar plus vt bar, y is equal to y bar, z is equal to z bar, e is equal to gamma t bar plus vx bar upon c square. So these are the reverse transformations. So when you go from S to S bar, then you can use these transformations, and these you can use when you're going from S bar to S frame of reference. बेटा आप लोग फॉलो कर पा रहे हो? अभी भी ओके ओके. अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर आप अपने आप को अनम्यूट करके यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन. मैं ऑन द वेरी स्पॉट क्लैरिफाई कर दूंगा अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है. अभी भी स्टूडेंट जो है ज्वाइन कर रहे हैं. आई एम हैविंग टू ऐड देम. मुझे रिमूव करना पड़ेगा फीचर. ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है ना
तो मुझे रोक करके आप मेरे को पूछ लेना एट द वेरी मोमेंट इटसेल्फ। तो अभी तक आपको समझ में आ रहा है दैट बेसिकली द आइडिया वाज प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी and Galilean transformations are used to go from one frame of reference to another. The Newton's laws were valid. The Newton's laws जो है principle of relativity के साथ consistent था. Maxwell's equation जो है principle of relativity के साथ consistent नहीं था. So that was one of the big challenges of the 19th and 18th century कि what is wrong? Maxwell's equations are wrong, Galilean transformations are wrong, या फिर there is some kind of an absolute frame of reference. Michelson-Morley experiment ने ये prove कर दिया कि absolute frame of reference तो है नहीं. उसके बाद Einstein came into the picture and he said that the Galilean transformations are wrong, Maxwell's equations are correct, and he emphasized कि जो principle of relativity है that is very much valid and it is not only valid for Newton's laws, it is valid for all laws. चाहे वो thermodynamical laws हो, electromagnetic laws हो, statistical laws हो, कुछ भी हो, the principle of relativity is valid for all laws. And he added another caveat about the constancy of the speed of light. इन दोनों को यूज करके मैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को डिराइव कर सकता हूं स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिराइवेशन। तो आप वो डिराइवेशन देख लेना एक बार कि सिंपली इन दोनों आइडियाज को यूज करके मैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को डिराइव कर सकता हूं। तो यू लुक एट द डिराइवेशन, so I end up getting a new set of transformations. जब भी मेरे को कोई दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के बीच कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म करना हो, वेलोसिटीज को ट्रांसफॉर्म करना हो, एक्सेलरेशंस को ट्रांसफॉर्म करना हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को ट्रांसफॉर्म करना हो, तो I can start with the Lorentz transformations. So now before I go to some higher concepts, I want to show some consequences of the Lorentz transformation. Okay, some very interesting consequences of the Lorentz ट्रांसफॉर्मेशन। और ये कॉन्सिक्वेंस अगर आप समझ जाएंगे अच्छे से, ऑफ कोर्स आपने पढ़ा हुआ है टाइम डायलेशन, लेंथ कंट्रैक्शन, बट दिस विल प्रोवाइड अ काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर आवर फ्यूचर लेक्चर्स। जो फोर वेक्टर्स है या फिर जो स्पेस टाइम इंटरवल है, उन चीजों को समझने के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। ऑलराइट, सो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंस है दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ टाइम डायलेशन। आई कैन इजीली प्रूव इट विद इन लाइक 2 or 3 स्टेप्स। मैं टाइम डायलेशन को प्रूव कर सकता हूं। सो उसको प्रूव करने के लिए अगेन लेट्स सपोज, आई होप कि आप लोग इसको नोट डाउन कर रहे हैं वट एवर आई एम राइटिंग डाउन हियर। सो अगर अगेन आपके पास एक्स वाई जेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्स बार वाई बार जेड बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दी एस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जर्वर है और यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। सो लेट्स सपोज ये जो ऑब्जर्वर है इसके हाथ में एक बल्ब है, ठीक है, या इसके हाथ में जो है बल्ब है, और ये जो बल्ब है वो 2 बार ऑन ऑफ होता है। सो पहली बार ऑन होता है, ठीक है, फिर ऑफ हो जाता है बहुत कम टाइम के लिए, फिर दूसरी बार ऑन होता है, फिर ऑफ हो जाता है। सो बेसिकली इट सेंड्स आउट 2 पल्सेस ऑफ लाइट, ठीक है। सो लेट्स सपोज जो फर्स्ट पल्स ऑफ लाइट है उसको हम कहते हैं इवेंट ए। जो पहली बार बल्ब ऑन होता है एक टाइम के लिए, फॉर अ मोमेंट, वेरी स्मॉल मोमेंट, तो उसको हम कहते हैं इवेंट ए। और दूसरी बार जब बल्ब ऑन होता है लेट्स सपोज उसको हम कहते हैं इवेंट बी, ठीक है। सो इवेंट का मतलब है कि सम काइंड ऑफ फिजिकल इवेंट हैज टेकन प्लेस। जरूरी नहीं कि आप यही एग्जांपल ले बल्ब से रिलेटेड, आप दूसरा कोई एग्जांपल भी ले सकते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल्स। 2 बार बल्ब ऑन ऑफ होता है, तो पहली बार जब ऑन ऑफ होता है इज इवेंट ए, दूसरी बार जब ऑन ऑफ होता है तो इवेंट बी। नाउ ये जो दोनों इवेंट है दीज आर बीइंग स्टडीड बाय बोथ द ऑब्जर्वर्स, ठीक है। सो दिस इज ऑब्जर्वर 1 एंड दिस इज ऑब्जर्वर 2। तो ऑब्जर्वर 1 के रेस्पेक्ट में जब इवेंट ए होता है इट हैपेंस एट टाइम टी ए लेट्स सपोज, और ऑब्जर्वर 2 के रेस्पेक्ट में इवेंट ए हैपेंस एट टी ए बार, ओके। एंड इवेंट बी जो होता है ऑब्जर्वर 1 के रेस्पेक्ट में होता है टी बी में, टाइम पीरियड में, एंड ऑब्जर्वर 2 के रेस्पेक्ट में इवेंट बी होता है टी बी बार, ठीक है। तो दोनों के पास जो है दे हैव वॉचेस, इसके पास भी एक घड़ी है, इसके पास भी एक घड़ी है, ठीक है, एंड दे आर सिंक्रोनाइज, दोनों को सिंक्रोनाइज किया हुआ है। और करने के बाद इन दोनों इवेंट्स को स्टडी किया कि सबसे पहले जो बल्ब लाइट्स अप, तो दैट इज फर्स्ट इवेंट एंड द सेकेंड इवेंट, ठीक है। नाउ अगर दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टाइम, तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होना चाहिए? सो अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो दोनों इवेंट के बीच में टाइम पीरियड है, मतलब व्हाट द टाइम पीरियड बिटवीन बोथ द लाइटिंग ऑफ द बल्ब, मतलब बल्ब एक बार लाइट हुआ फिर दूसरी बार लाइट हुआ, तो जो टाइम पीरियड है दैट इज समथिंग व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट।
So TB minus TA should be equal to TB bar minus TA bar. So this is something which is a बेटा राहुल आप कह रहे हो कि आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा? आपकी तरफ से शायद कोई ऑडियो का बटन है जिसको आपको ऑन करना पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक बाकी लोग तो सुन पा रहे हैं. किसने लिखा था? राहुल. राहुल, प्लीज लुक एट योर ऐप कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, आप इसको एक बार देख लो, बिकॉज मेरी तरफ से तो आई थिंक वॉइस जा रहा है. एनीवेज, सो व्हाट आई एम सेइंग इज, अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि दो इवेंट है, एक बार बल्ब लाइट ऑन होता है, दूसरी बार बल्ब लाइट ऑन होता है. तो दोनों इवेंट के बीच में जो टाइम पीरियड है वो पहले ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जितना टाइम पीरियड होगा और दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जितना टाइम पीरियड होगा वो दोनों बराबर होगा. ठीक है, दिस इज लाइक बेसिकली टाइम फ्लोज द सेम फॉर एवरीबडी. लेकिन व्हाट हैपेंस अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो उसको यूज करके हम चेक कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल, अगर हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में से जो फोर्थ इक्वेशन है, सो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सो चौथे इक्वेशन को हम यूज करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है. सो इवेंट ए के लिए हम लिख सकते हैं कि टी ए जो है इज इक्वल टू, दिस इज द रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, गामा टी ए बार प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स ए बार. ठीक है, एंड इवेंट बी के लिए टी बी इज इक्वल टू गामा टी बी बार प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स बी बार. राइट, सो दिस इज द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. सो यहाँ पे अगर हम दोनों का टाइम पीरियड डिफरेंस चेक करना चाहें, सो अगर हम बोले कि टी बी माइनस टी ए क्या है, ऑलराइट, सो दिस इज नथिंग बट, मैं इसको सब्ट्रैक्ट करके देता हूं. सो गामा इज अ कॉमन फैक्टर, सो टी बी बार माइनस टी ए बार, ठीक है, प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स बी बार माइनस एक्स ए बार. नाउ एक्स बी बार माइनस एक्स ए बार क्या है? ये जो है पोजीशन है बल्ब का. ठीक है, नाउ बल्ब का पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर 2 के रेस्पेक्ट में. क्योंकि बल्ब जो है ऑब्जर्वर 2 के हाथ में है, इसलिए ये जो पोजीशन है चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ. बल्ब जो है रेस्ट पे. सो ऑब्जर्वर 2 जो है बल्ब के रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है. सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0. राइट, if this is going to be equal to 0, you end up getting TB minus TA is equal to gamma TB bar minus TA bar. Okay, now what is TB bar minus TA bar? ये क्या चीज है? ये जो है टाइम पीरियड measured by both events, measured between events by an observer in the events rest frame of reference. राइट, इवेंट जो हो रहा है एस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो रहा है. ठीक है, उसके पर्सपेक्टिव में जो है ऑब्जर्वर टू रेस्ट पे है. ठीक है, इवेंट्स रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, आप प्लीज इस चीज को समझो कि ये जो है एस जो है ये कोई एब्सोल्यूट फ्रेम नहीं है. ठीक है, और एस बार भी जो है कोई एब्सोल्यूट फ्रेम नहीं है. ठीक है, एस के पर्सपेक्टिव से एस बार मूविंग है ना, और एस बार के पर्सपेक्टिव से एस मूविंग है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो क्योंकि जो बल्ब है वो एस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो बेसिकली एस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द रेस्ट फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू द बल्ब. ठीक है, अगर बल्ब हम एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेते तो फिर एस फ्रेम रेस्ट फ्रेम बन जाता. लेकिन क्योंकि बल्ब हमने एस बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिया है, तो जो एस बार के रेस्पेक्ट में हमने टाइम मेजर किया है, ये टाइम, this is the time measured between events by an observer in the events rest frame of reference. तो इसको हम कहते हैं basically proper time interval. Okay, this is called proper time. और TB minus TA क्या है? बल्ब S बार फ्रेम में है, फिजिकल इवेंट S बार फ्रेम में हो रहा है, लेकिन ऑब्जर्वर S फ्रेम में है. तो ये जो टाइम पीरियड है इसको हम कहते हैं, लेट्स सपोज T, ये किसी मूविंग ऑब्जर्वर ने मेजर किया. ठीक है, सो यू एंड अप गेटिंग दिस रिलेशनशिप. So this is the relationship of time dilation. So यहाँ पे अगर हम लिखते हैं properly, del t is equal to del t naught divided by root over 1 minus v square upon c square. So this is what is called time dilation. मतलब कि ये है कि अगर आप कोई भी फिजिकल इवेंट को स्टडी करते हैं और उस फिजिकल इवेंट से रिलेटेड आप
जो है टाइम पीरियड को मेजर करने की कोशिश करते हैं, तो क्या आप उस फिजिकल इवेंट के रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, या फिर आप उस फिजिकल इवेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका कोई रिलेटिव मोशन है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं। तो ये जो है टाइम पीरियड, ये फिजिकल इवेंट के रेस्पेक्ट में रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर किया गया है कि जो बल्ब है उसके रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है, तो ये है प्रॉपर टाइम। ठीक है, इसको हम प्रॉपर टाइम कहते हैं। इनफैक्ट कोई भी फिजिकल कोई भी मेजरमेंट अगर हम किसी फिजिकल इवेंट के रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करते हैं तो वो प्रॉपर टाइम प्रॉपर लेंथ कहलाता है। और ये जो हो गया आपका क्वांटिटी, ये जो है कोई ऐसा ऑब्जर्वर मेजर कर रहा है जो फिजिकल इवेंट के रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है, बल्कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिजिकल इवेंट हो रहा है उसके रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो ये रिलेटिव हो गया। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए कि बेसिकली जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था, ये जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था, इसका मतलब ये था कि टाइम पीरियड जो है दो इवेंट्स के बीच में सारे सारे फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में सेम है, राइट। बट जो गैलीलियन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सिक्वेंस ये है कि टाइम पीरियड जो है दो इवेंट्स के बीच में सारे फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में सेम नहीं है। सो बेसिकली ऑब्जर्वर किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो फिजिकल इवेंट का जो टाइम पीरियड है वो किस तरह से मेजर कर रहा है। ठीक है, सो अगर ऑब्जर्वर और फिजिकल इवेंट के बीच में देयर इज अ हाई अमाउंट ऑफ relative velocity, then he will basically observe that the time between two physical events gets dilated. ठीक है, so this is known as time dilation. This is the most simplistic derivation using the Lorentz transformations for the time dilation that is possible. इससे related कोई question है? Do you have any questions related to time dilation? नहीं. So let's go to the next topic, which is that of length contraction. So length contraction के लिए भी हम एक बहुत ही simple derivation कर सकते हैं. So let's suppose again we do the same kind of that there are two frames of reference x, y, z, x bar, y bar, z bar. There are two observers. ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है. So observer 1, so observer 2. तो अभी पहले क्या था, पहले ये दोनों ऑब्जर्वर जो है टाइम पीरियड मेजर कर रहे थे. ठीक है ना, इनके पास दो वॉचेस थे, सिंक्रोनाइज वॉचेस, और ये टाइम पीरियड मेजर कर रहे थे. तो अभी जो है ये लेंथ मेजर करने की कोशिश करेंगे. तो लेट्स सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, लेट्स सपोज अब हम एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखते हैं कि एस फ्रेम में क्या होगा, उसके पर्सपेक्टिव से देखते हैं. तो कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो है लेंथ मेजर करना है. ठीक है, और उस लेंथ को मेजर करने के लिए दोनों के पास स्केल है. ठीक है, इसके पास भी एक रूलर है और इस बंदे के पास भी एक रूलर है. ठीक है, दोनों ने सिंक्रोनाइज किया हुआ है स्टार्टिंग में, बिफोर द इवेंट हैपेंस, बिफोर दिस गाय स्टार्ट्स मूविंग विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, दोनों ने अपने रूलर्स को, स्केल्स को सिंक्रोनाइज कर दिया ताकि दोनों का जो रूलर है they are equal, they are not there is no error between them. All right, and now this guy is moving with a particular velocity and they are trying to measure the distance between two points. Let's suppose ये एक पॉइंट हो गया. ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये हो गया. ठीक है, सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द फर्स्ट ऑब्जर्वर, ये पॉइंट जो है एक्स ए में है और ये पॉइंट जो है एक्स बी में है. ठीक है, एंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑब्जर्वर 2, ये पॉइंट एक्स ए बार में है और ये एक्स बी बार में. राइट, कोऑर्डिनेट्स तो अलग हो सकता है, दोनों ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से जो है कोऑर्डिनेट्स दोनों अलग हो सकते हैं. सो फॉर ऑब्जर्वर 1, XA, XB are the endpoints of the bar, and for observer 2, XA bar and XB bar are the endpoints of this kind of a, let's suppose, bar or ruler or something like that. तो अगर ऐसी बात है तो can we use the Lorentz transformation to find out the distance and how it varies with respect to the relative motion? हाँ, हम कर सकते हैं. So सबसे पहले let's suppose Galilean transformation के point of view से क्या होता है. Galilean transformation के point of view से बहुत simple है कि जो length है between any two points in space is equidistant or consistent across all observers. So x bar minus x a bar. This is the Galilean transformation, Newtonian physics. कि स्पेस में कोई भी दो पॉइंट है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स, देयर इज नो एक्सेप्शन. लेकिन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं कहता है. लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज समथिंग एल्स. सो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अपने के लिए अगेन लेट्स सपोज लेट्स यूज द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. पहला इक्वेशन को यूज करते हैं. तो पहला इक्वेशन क्या है, x से रिलेटेड है. तो एक्स ए इज इक्वल टू
गामा रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्स ए बार प्लस वी टी ए बार, राइट, पहला इक्वेशन। और एक्स बी के लिए एक्स बी बार इज इक्वल टू गामा एक्स बी बार प्लस वी टी बार, राइट। सो दिस इज द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या क्या होता है। सो एक्स सॉरी यहाँ पे बार नहीं है, ये एक्स एक्स बी है। सो एक्स बी माइनस एक्स ए करके देखते हैं तो क्या होगा। सो व्हाट हैपेंस इफ आई डू एक्स बी माइनस एक्स ए। सो दिस इज नथिंग बट गामा एक्स बी बार माइनस एक्स ए बार प्लस वी टी बार माइनस टी ए बार, राइट। नाउ यहाँ पे जो है मेजरमेंट जो है साइमल्टेनियसली हो रहा है। लेट्स सपोज दैट ये बंदा जो है एक ही टाइम पे दोनों पॉइंट्स को मेजर करता है और ये बंदा जो है एक ही टाइम पे दोनों पॉइंट्स को मेजर करता है। अगर ऐसी बात है, द मेजरमेंट हैपेंस एट द सेम टाइम, देन दिस इज गोइंग टू कम आउट टू बी जीरो एंड यू आर गोइंग टू एंड अप गेटिंग एक्स बी माइनस एक्स ए इज इक्वल टू गामा एक्स बी बार माइनस एक्स ए बार। नाउ यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ हम स्टडी कर रहे हैं, ये किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अगर ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो इन दैट केस ये क्या हुआ, ये हुआ तुम्हारा कोऑर्डिनेट्स विथ रेस्पेक्ट टू द रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो ये हो गया तुम्हारा प्रॉपर लेंथ, ठीक है। सो ये जो कोऑर्डिनेट्स है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू द रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो ये हो गया तुम्हारा प्रॉपर लेंथ। और यहाँ पे जो एस बार है दैट इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू दिस रॉड और समथिंग लाइक दैट। सो ये हो गया तुम्हारा रिलेटिव लेंथ, ऑलराइट। सो दिस प्रॉपर लेंथ को कहते हैं लेट्स सपोज डेल एल नॉट, रिलेटिव लेंथ को कहते हैं लेट्स सपोज डेल एल। सो डेल एल नॉट इज इक्वल टू डेल एल अपॉन गामा, सो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और डेल एल इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डेल एल नॉट। सो ये हो गया तुम्हारा व्हाट इज कॉल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। सो जब टाइम किसी दो फिजिकल इवेंट्स के बीच में स्टडी कर रहे हैं तो इन दैट केस टाइम डायलेशन होता है। मतलब अगर आप फिजिकल इवेंट के रेस्पेक्ट में मोशन में हैं तो द टाइम यू मेजर गेट्स डायलेटेड, इट स्प्रेड्स आउट, इट इंक्रीजेस। लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस को स्टडी कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन इट गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड। सो दिस इज कॉल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। यहां पे कोई क्वेश्चन है किसी को, एनीबॉडी हैव अ डाउट? इसके टाइम एब्सोल्यूट हाँ जी बेटा, क्या पूछ रहे हो आप? इसका टाइम एब्सोल्यूट मिलीसेकंड टाइम क्या चीज, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा जोर से बोलो। is the time absolute in the second case, like when you are saying you're trying to measure the dimension of a particular object. नो 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 नो, दिस इसकी इसके बारे में पूछ रहे हो? Yes, the second case. हाँ, तो इस केस में इट सिंपली मींस दैट आपने किस टाइम पे वो ऑब्जर्वेशन किया है, ठीक है। ये जो फिजिकल इवेंट है इट, यहाँ पे एक्स ए एक्स बी क्या है, दे आर पॉइंट्स इन स्पेस, ऑलराइट। दे आर नॉट टू सेपरेट फिजिकल इवेंट्स, दे आर टू डिफरेंट पॉइंट्स इन स्पेस। तो व्हेन यू आर मेकिंग मेजरमेंट कि ये दोनों पॉइंट स्पेस में कहाँ है, आई एम एज्यूमिंग दैट द मेजरमेंट इज मेड एट द सेम टाइम। ठीक है। मतलब ये टी बार है ना, टी बी बार है और ये टी ए बार है, इसका मतलब ये जो एस बार में बंदा है ही इज मेकिंग द मेजरमेंट, ठीक है। तो ही इज मेजरिंग कि ये पॉइंट कहाँ पे है और ये पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। एंड ही इज मेकिंग ए मेजरमेंट एट द वेरी सेम टाइम बिकॉज ही इज यूजिंग हिज रूलर टू मेक अ कंपैरिजन कि उस रूलर का और इस डिस्टेंस का कंपैरिजन क्या है। तो आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हो तो क्या करते हो, आप स्केल लेते हो, ठीक है। स्केल लेकर के देखते हो कि स्केल का कितना इंटीग्रल मल्टीपल है। मेरे पास कोई बहुत बड़ा कोई गाड़ी है, गाड़ी का लेंथ मेजर करना चाहते हो तो स्केल लोगे ना, फिर आप देखोगे कि आपका जो स्केल है मीटर स्केल है, वो मीटर स्केल का क्या मल्टीपल है, 5.2 टाइम्स है, 10 टाइम्स है, 11 टाइम्स है। अगर 11 टाइम्स है तो आप बोलोगे 11 मीटर है, 5.2 टाइम्स है आप बोलोगे 5.2 मीटर है, राइट। So you are making the measurement of both the ends at the same time. That's it. समझ रहे हो? Are you getting it? Yes, sir. हाँ. So you are making the. What, like, I was asking about the difference. Like actually, I was asking proper time and absolute time.
so that अच्छा, in the okay. second case because we are taking both the observation at the same time. We are not like अगर दोनों अलग अलग टाइम अलग अलग जगह पर हैं and उसका frame of reference move कर रहा है, but they are making the observation at the same time, so that's why we are taking time absolute and No. also in the first case you said that we have proper time. So नो like नो what's नो the difference between सो both of them? यहाँ पे हम दो फिजिकल क्वांटिटीज मेजर कर रहे हैं। यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम था टाइम डायलेशन में, यहाँ पे हम दो फिजिकल इवेंट्स को मेजर कर रहे हैं जो अलग अलग टाइम पे हो रहा है, मतलब एक के बाद एक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि इसका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा, मतलब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा जहां पे वो फिजिकल इवेंट हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने लेंथ चेंज नहीं हो रहा है इस रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, हम मूविंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में नहीं बोल रहे हैं, हम रेस्ट फ्रेम के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये जो बल्ब है वो रेस्ट पे है, तो उसका जो पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे हम टाइम मेजर कर रहे थे, दूसरे केस में हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, दूसरे केस में हम टाइम मेजर नहीं कर रहे। लेंथ मेजर करने के लिए आप दो पॉइंट्स को दो अलग अलग टाइम पे मेजर नहीं करोगे। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करना है तो दोनों जो एंड पॉइंट्स है, ये क्या है बेसिकली एंड पॉइंट्स है ना, एंड पॉइंट्स ऑफ अ रॉड, यू आर मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ अ रॉड एट द वेरी सेम टाइम। मतलब टी बी कॉरेस्पॉन्ड्स टू मेजरमेंट मेड ऑफ एंड पॉइंट बी at one time, and TA is corresponds to the measurement of the other endpoint A measured by the SPAR observer. तो जो length है you'll measure at the very same time. You cannot measure length at two different time periods. In fact, this is one of the reasons why length contraction happens in the first place, because we assume that the measurement of length is made at one instant by by one observer. आर यू गेटिंग एनी आइडिया मैं क्या कह रहा हूँ? Yes sir, understood. लेंथ मेजर कर रहा हूँ ना मैं, तो लेंथ यू विल मेजर एट द वन इंस्टेंट ओनली। पहले केस में हम जो है टाइम मेजर कर रहे थे, लेंथ मेजर नहीं कर रहे थे, तो इसलिए पहले केस में हमने एज्यूम किया था कि ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको जीरो कर दिया। लेकिन दूसरे केस में जो है हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, टाइम मेजर नहीं कर रहे। ठीक है, बट यहाँ पे ये शायद आपको ये ऑब्वियसली पता नहीं चलेगा कि टाइम डायलेशन क्यों हो रहा है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है। देयर इज अनदर फंडामेंटल थिंग दैट इज हैपनिंग जिसकी वजह से टाइम डायलेशन हो रहा है और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एंड एक्चुअली आपने जो क्वेश्चन पूछा है इट इज रिलेटेड टू दैट ओनली, एंड दैट इज नोन एज द साइमल्टेनिटी ऑफ the relativity of simultaneous events. Relativity of simultaneous events. फंडामेंटली जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन होता है, इट हैपेंस ड्यू टू द रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनियस इवेंट्स। नाउ साइमल्टेनियस इवेंट्स क्या है, इसको मैं एक बार रेफर कर देता हूं बिफोर मूविंग अहेड। साइमल्टेनियस इवेंट सिंपली ये है कि अगर दो इवेंट एक साथ होता है एट द सेम टाइम, तो अकॉर्डिंग टू द गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन वो किसी भी ऑब्जर्वर के लिए साइमल्टेनियस रहेगा, लेकिन नॉट फॉर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सो फॉर एग्जांपल लेट्स अगेन ड्रॉ द सेम थिंग. So if you take an S frame and if you take an S bar frame, ठीक है, X Y Z, X dash Y dash Z dash, ठीक है, and there is, let's suppose two explosions which take place A B, ठीक है। Now यहाँ पे हमने टाइम डायलेशन में क्या किया था, हमने टाइम डायलेशन में सेम जगह पे दो इवेंट हो रहा था अलग अलग टाइम पे। हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में क्या किया था, दो अलग अलग पॉइंट्स इन स्पेस को मेजर किया था एट द सेम टाइम। नाउ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेट्स सपोज देयर आर टू इवेंट्स हैपनिंग एट डिफरेंट लोकेशंस एंड हैपनिंग एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स, लेट्स सपोज, ठीक है। सो लेट्स सपोज दिस इज कॉल्ड इवेंट ए। तो इवेंट ए आप एज्यूम कर सकते हैं इट इज लाइक सम काइंड ऑफ एन एक्सप्लोजन, कोई बम फट गया है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो आई कैन एसोसिएट द एक्सप्लोजन विद अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स इवेंट ए, एंड कोई दूसरा बम फट गया एट अनदर लोकेशन, सो आई कैन एसोसिएट अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स with event B. So if I do that, then in that case what is going to happen is I can again
use the Lorentz transformation. So let's suppose मैं Lorentz transformation use करके देखता हूँ कि what sort of a conclusion I can derive. So if I use the forward transformations, so TA bar is equal to gamma TA minus V upon C square XA. So this is associated, this is the fourth equation for the first event. And let's suppose I write the fourth equation for the second event, TB bar is equal to gamma TB minus V upon C square XB. Okay. Again, if I find the difference between, let's suppose, TB bar minus TA bar, then this simply comes out to be gamma. So TB minus TA, okay. So this minus this. So minus V upon C square XP minus XA. Fine. Now, what can we conclude from this particular equation? From this particular equation, we can conclude that, let's suppose, so let's suppose both events are simultaneous. Both events are simultaneous with respect to S frame of reference. ठीक है, जो S फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके पर्सपेक्टिव से अगर दोनों इवेंट एक ही टाइम पे हुआ है, ठीक है, साइमल्टेनियस का मतलब क्या है? साइमल्टेनियस का मतलब ये है दैट इवेंट्स हैपन एट द सेम टाइम. ठीक है, सो साइमल्टेनियस इवेंट्स आर दोज इवेंट्स जो एक ही टाइम पे होता है. ऑलराइट, सो लेट्स सपोज कि कोई ऑब्जर्वर एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसके पर्सपेक्टिव से जो दोनों इवेंट ए और बी है, ए एंड बी, दे आर साइमल्टेनियस. साइमल्टेनियस होने का मतलब क्या है? जो टीबी माइनस टी ए इज इक्वल टू जीरो. राइट, अगर एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पर्सपेक्टिव से इवेंट ए और इवेंट बी साइमल्टेनियस है, दैट मींस टीबी माइनस टी ए इज इक्वल टू जीरो. हाउएवर, if TB minus TA is equal to 0, that does not mean that TB bar minus TA bar is also equal to 0. समझ लो? So it does not mean that TB bar minus TA bar is also equal to 0. In fact, this is not equal to 0. Alright, इसका मतलब ये है कि events are simultaneous with respect to S frame. और इसका मतलब क्या है? इवेंट्स आर नॉट साइमल्टेनियस with respect to S bar frame. So this is known as the relativity of simultaneous events. कि अगर किसी एक पर्सन के रेस्पेक्ट में कोई दो इवेंट साइमल्टेनियस है, तो जरूरी नहीं है कि दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में भी वो साइमल्टेनियस होगा. इनफैक्ट this goes against a very fundamental assumption of Newtonian mechanics. So Newtonian mechanics assumes that अगर दो इवेंट के बीच में जो टाइम पीरियड जीरो है, दे आर साइमल्टेनियस, देन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जर्वर टीबी बार माइनस टीए बार भी जो है जीरो रहेगा. सो अगर दो इवेंट साइमल्टेनियस है विथ रेस्पेक्ट टू वन ऑब्जर्वर, देन इट मस्ट बी साइमल्टेनियस विथ रेस्पेक्ट टू ऑल ऑब्जर्वर्स across all infinite possible inertial frames of reference. But ये जो है, it is not valid in relativistic mechanics. In relativistic mechanics, अगर किसी एक पर्सन के लिए दो इवेंट साइमल्टेनियस है, दूसरे पर्सन के लिए वो जरूरी नहीं है कि वो इवेंट साइमल्टेनियस होगा. बेटा यहां तक आप लोगों को समझ पा रहे हो? मैंने अभी तक जो भी बताया है, दिस वाज मेनली एन इंट्रोडक्शन टू द आइडियाज ऑफ एसटीआर. ओके, निशांत इज सेइंग कि हाँ समझ आ रहा है. फाइन, थोड़ा सा आप फीडबैक अगर दे सकते हो तो मुझे दे दो, इट विल बी बेटर, बिकॉज इट्स लाइक आई एम टॉकिंग टू माई कंप्यूटर. कोई भी फीडबैक आपकी तरफ से है नहीं. So if you want to ask a question, or if you have some doubt and you want to stop me somewhere and ask a question, you can do that. So अभी तक मैंने जो डिस्कस किया है, these are some of the basics of special theory of relativity. शायद आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा होगा, I don't exactly know. अगर आपने पढ़ा होगा तो this is like a revision. कि ये जो ideas है, this basically gives us an idea about that what is special theory of relativity and how it is different from Newtonian mechanics. So this was the introduction. Okay, so now what I want to do is I want to give you a taste of something which is very much valid for your syllabus.
तो हमने जो क्या कंक्लूजन डिराइव किया यहाँ पे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो डिराइव ये किया कि जो स्पेस के बीच में दो पॉइंट्स है उनका जो डिस्टेंस है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन, और जो टाइम पीरियड ऑफ दो फिजिकल इवेंट्स होता है वो डायलेट होता है ड्यूरिंग फिजिकल इवेंट्स. सो लेट मी राइट डाउन द कंक्लूजन्स ऑफ कंक्लूजन क्या है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में अगर आप दो पॉइंट के बीच में, लेट्स सपोज आपके पास दो पॉइंट है, देखो मैंने यहाँ पे जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मेजर किया था वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर मेजर किया था, लेकिन जो जनरल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. ठीक है, अभी जो मैं आपको कंक्लूजन बताने जा रहा हूं दैट इज गोइंग टू बी ट्रू फॉर अ जनरल केस. ओके, इवन दो हम जो डिराइवेशंस करते हैं वो जो डिराइवेशंस है दे आर मोस्टली फॉर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो मोशन हो रहा है, क्योंकि वो कैलकुलेशन जो है काफी इजी रहता है. बट जो कंक्लूजन मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं दैट इज समथिंग विच इज ट्रू फॉर अ जनरल केस ऑल्सो. जनरल केस मतलब कि अगर दोनों पॉइंट का जो लेंथ है वो किसी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में, ठीक है, तो लेट्स सपोज आपका एक पॉइंट है ए, एक दूसरा पॉइंट है बी, राइट. तो अगर लेट्स सपोज आपके पास एक पॉइंट ए है, ठीक है, और एक पॉइंट बी, ठीक है, तो अगर आप दोनों पॉइंट्स के बीच में जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हो, लेट्स सपोज डेल डी, वो डिस्टेंस क्या होता है? The distance between any two points in space, which is basically nothing but Euclidean space. Okay, Newtonian mechanics is usually done in Euclidean space, so that is nothing but xb minus xa whole square plus yb minus ya whole square plus zb minus za whole square. So this is nothing but del x square plus del y स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर. तो न्यूटनियन मैकेनिक्स में क्या होता है कि अगर आप किसी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को मेजर करते हैं, इन दैट केस द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स इज द सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स. इसका मतलब है डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर इज द सेम एज डेल एक्स बार स्क्वायर प्लस डेल वाई बार स्क्वायर प्लस डेल जेड बार स्क्वायर. मतलब कि ये जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में, आप एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर मेजर करते हो तो ये रहेगा, अगर एस बार फ्रेम के रेस्पेक्ट में मेजर करते हो, डेल डी बार स्क्वायर मेजर करते हो, तो वो बेसिकली होगा डेल एक्स बार स्क्वायर प्लस डेल वाई बार स्क्वायर प्लस डेल जेड बार स्क्वायर, राइट. सो स्पेस में, द स्पेस in which you use Newtonian mechanics, then the distance between any two points in that kind of a Cartesian coordinate rectangular space, which is basically an Euclidean space, remains invariant. So this is known as the idea of invariance. Okay, relativity में we are interested कि क्या क्या चीजें जो है ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बदलता है, किस क्या क्या चीजें नहीं बदलता है. सो इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स स्पेस में जो दो पॉइंट्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस है कोई भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में दो ऑब्जर्वर के बीच में कंसिस्टेंट रहता है. सेम चीज अगर दो इवेंट दो अलग अलग टाइम पे होता है तो डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल टी बार स्क्वायर. दिस इज न्यूटोनियन मैकेनिक्स, राइट. बट अभी हमने क्या नोटिस किया कि दिस इज फॉर ट्रू फॉर न्यूटोनियन मैकेनिक्स, बट व्हाट अबाउट आइंस्टाइनियन मैकेनिक्स, और जिसको हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स. रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है. सो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू डेल एक्स बार स्क्वायर प्लस डेल वाई बार स्क्वायर प्लस डेल जेड बार स्क्वायर. सेम चीज टाइम के साथ भी डेल टी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू डेल टी बार स्क्वायर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर जो भी आप, एंड फंडामेंटली ये जो चीजें हो रहा है ना, ये ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या फिर क्लॉक्स का जो मैकेनिक्स है वो चेंज हो रहा है. द वेरी आइडिया, द वेरी फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम इज चेंजिंग. द वे वी मेजर things, the meter rods themselves are changing in such a manner that the moment you measure the distance between two points, then they are not necessarily the same for all observers. So दो अलग अलग ऑब्जर्वर के बीच, लेट्स सपोज ये ऑब्जर्वर वन
अगर मेजर करता है और ये ऑब्जर्वर 2 मेजर करता है, तो ये जो है दोनों के लिए अलग रहेगा, जबकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है. सो दिस बिकम्स अ बिग चैलेंज. Now, why this becomes a big challenge? Because Newtonian mechanics सर में, हाँ बताओ. सर व्हाई आर वी कॉलिंग हाँ सर बताओ. न्यूटोनियन मैकेनिक्स को हम यूक्लिडियन स्पेस से कैसे वो कर रहे हैं, मतलब जो न्यूटोनियन, ज्योमेट्रिकल स्पेस होता है ना एक, आई गेस. या जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम जितने भी कैलकुलेशंस करते हैं ना, दैट इज बेसिकली यूक्लिडियन स्पेस. जो तुम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ओके सर. रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हो, ठीक है, हम यूजुअली इसको रेफर नहीं करते हैं, बट दैट इज, जो वो ज्योमेट्री होता है दैट इज यूक्लिडियन स्पेस. मतलब हम ज्योमेट्रिकल पर्सपेक्टिव्स में नहीं जाएंगे, जा सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल, कोई तुम वेक्टर लेते हो, ठीक है ना, अगर तुम कोई वेक्टर लेते हो, तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है इट डज नॉट चेंज अगर यू डू अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रांसलेट करता है या फिर रोटेट करता है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट चेंज नहीं होता. तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो यूक्लिडियन स्पेस के साथ एसोसिएटेड है. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इस टर्म को काट देता हूं अभी फॉर द टाइम बिंग. ठीक है, मैं यूक्लिडियन स्पेस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है यूक्लिडियन स्पेस में होता है, जबकि आइंस्टाइनियन मैकेनिक्स जो है उसके लिए हमें नया एक स्पेस टाइम जिसको कहते हैं डिफाइन करना पड़ेगा, जो मैं कल करूंगा, मिन्काउस्की स्पेस. ठीक है, सो मिन्काउस्की स्पेस की जो प्रॉपर्टीज है वो यूक्लिडियन स्पेस की प्रॉपर्टीज से थोड़ा सा अलग है. ठीक है, और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो यूक्लिडियन स्पेस है उस स्पेस में जो दो दो पॉइंट्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स. लेकिन मिन्काउस्की स्पेस में ऐसा नहीं है. जो स्पेस के बीच में दो पॉइंट्स है उनका जो डिस्टेंस है वो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग हो सकता है. सेम चीज न्यूटन मैकेनिक्स में जो टाइम पीरियड होता है दो फिजिकल इवेंट के बीच में वो सेम रहता है फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स. लेकिन इन द केस ऑफ रिलेटिविटी, जैसा हमने देखा अभी टाइम डायलेशन में, कि दो फिजिकल इवेंट्स के बीच का जो टाइम पीरियड है वो सेम नहीं रहता है. ठीक है, टाइम एक्सपीरियंस अ सर्टेन काइंड ऑफ डायलेशन. ठीक है, सो नाउ इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क अ क्वेश्चन कि अगर ऐसा है कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में जो है ये जो एक्सप्रेशन है ये वेरिएंट इनवेरिएंट नहीं रहता, इसको कहते हैं इनवेरिएंस. ओके, सो वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर इनवेरिएंट और नॉट इनवेरिएंट. मतलब कौन से फिजिकल क्वांटिटीज जो है क्या बोलते हैं, इनवेरिएंट है